Hello everyone, welcome to this video by CAT by LPT. In today's video, we will be looking at the strategy for next 8 months, right? So I'm assuming that you would be starting your preparation now, and you will be looking in terms of what you need to do in the next 8 months in order to make sure that you ace CAT, right? So let's have a look at the strategy that we're looking for. So see, basically strategy is a combination of certain efforts that you need to make. So from making it sure that you are working on your foundation and your basic concepts to also making sure that you go to the advanced level, let's have a look at step by step process. How do we go about it, right? Chaliye, let's look at this. Now for the first 2 months, so when you talk about the first 2 months, it's all about basics. So what I would recommend is that first thing you have to start reading daily. So for English section or the verbal section for that matter, the important part is that you have to read a lot. So start by starting to read daily. Then you have to solve 4 to 5 RCs per week. So make sure that you're reading as well as you're reading plus you're understanding what the text is actually saying there. So solve 4 to 5 RCs per week. This is the time when you will work on your foundation skills also. So make sure you are working on your grammar skills and your vocabulary skills, because these will help you to navigate the other question types that we will see in verbal ability types. Of course, you can go for basic topic test. So you could pick up a test for an RC that you have probably would have done in your starting practices here. So you can pick up on those. And of course, you can go for one sectional per month. So give a sectional per month and get an analysis in terms of what the difficulty level is, how good or bad you were at the questions, analyze it properly, and then take up your preparation further. So this is for the first 2 months. That is how you need to plan to go as far as English is concerned. Then for the next 3 months preparation plan. So for the next 3 months, it's about 8 to 10 RCs per week. So moving from 4 to 5 RCs per week, now you need to scale it up. So you would be going for 8 to 10 RCs per week. Now this is also the time when you will start dealing with verbal ability topics. So I told you in the previous video that verbal ability gives you 4 type of questions. So you have para summary questions, you have sentence completion questions and other types here. So you can start exploring verbal ability topics, and of course from one sectional you can move on to 3 to 4 sectionals per week. This will help you practice even more, and it will give you a lot of confidence in terms of the question types and the strategy to deal with those questions. Okay, so this is for the next 3 months. Then we move on to the next 2 months strategy. So here again, now you will be looking into the advanced level RCs and question types. I'm sure in the last 3 months you probably would have prepared in terms of the basic and the intermediate types. But now is the time when you will be looking for advanced level RCs to be practiced daily. And of course for the VA questions, you will be looking at CAT level of questions. So this is the time when you should be touching upon that level of CAT difficulty. And of course here is the time when you will start with full length mock. So take a full length mock and make sure that you're analyzing it pretty well. See, if you take a 2-hour mock, your analysis level should be around 4 hours, because that will help you to have an in-depth understanding. So what are your strength areas, what are your weak areas, where do you need to focus more, where do you need to tone down a bit, and your analysis of your strengths and your weaknesses. Okay, so this is for the next 2 months. And then we have the last 1 month, which is the final chunk. So in the final chunk, you will have to deal with past year paper questions. So PYQs will come in very handy. So solve previous year papers and make sure that you are having a clear understanding of the question types and the strategy to handle these questions. Focus on advanced level questions. So as I told you before, this is the 1 month prior to CAT. So this is the time when you will be looking at advanced level questions. This is also the time when you would make sure that you are taking up to 2 to 3 mocks in a single week. So this will help you to streamline your preparations. It will also help you to make sure that you are at par with in terms of the speed
and the accuracy of these marks. So this is how you are supposed to go about it, and let's see if you can just navigate through these stages in the last couple of 8 months here. Probably you will be able to ace the CAT and score a very decent percentile. So this is all I have got for you. We will, in the forthcoming videos, we will be dealing with more such stuff. Thank you everyone. Have a good day. So next 8 मंथ में कैट प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी लगानी है. So फ्रेंड्स 8 महीने के टाइम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, पहला जो अप्रैल से लेकर के जून का टाइम है उसमें आपको बेसिक चीजें समझनी है. ये डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स है जो डीआई में आपको दिखता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है. ठीक है, तो आपको क्या ये चीजें बेसिक समझ में आता है? क्या आपको पता है रूट एंड नेटवर्क क्या होता है? क्या आपको बबल चार्ट देखा है? स्कैटर्ड ग्राफ को कैसे पढ़ा जाता है? ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको डीआई में समझ में आना चाहिए. और एलआर में भी किस किस टाइप की पजल्स बनती हैं उस पे भी आपको आइडिया होना चाहिए कि वेन डायग्राम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में किस टाइप की पजल्स बनती हैं. वेन डायग्राम, गेम्स, टूर्नामेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी टाइप की पजल्स यहाँ पे बनाई जा सकती है उन सब का बेसिक सेट्स कम से कम कोशिश करें कि हर टाइप की पजल्स पे 10 से 15 सेट आपने कर लिए हों. ठीक है, जब एक बार ये सब चीजें हो जाएगी आपकी जून तक, तब अपन मॉक स्टार्ट कर सकते हैं. आप चाहे तो मॉक्स पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट बहुत पहले नहीं, अभी करने का फायदा नहीं. आप 1 जून से स्टार्ट कर सकते हैं. जब 60% सिलेबस आपका 70% सिलेबस हो चुका होगा तो आप 1 जून से चाहे तो मॉक स्टार्ट कर सकते हैं. आप 1 जून से आप मान के चलिए कि जब आप नवंबर में कैट देने वाले, उस बीच में आपके पास 5 महीने करीब मिनिमम 5 महीने तो होंगे, बट आप ऑन एन एवरेज आप मान के चले तो 25 वीक तो मिनिमम मिलेंगे. तो 25 वीक में अगर हम बात करें तो 25 मॉक तो हम मिनिमम ले सकते हैं. हर वीक में एक मॉक लेंगे. मॉक जितना जरूरी है इक्वली इंपॉर्टेंट है आपको उसका एनालिसिस करना. तो जब आप मॉक देंगे तो उसके बाद उसका एनालिसिस भी करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि एनालिसिस करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि नेक्स्ट टेक्स्ट में मुझे क्या करना है, क्या मैंने यहाँ मिस्टेक, क्या मैंने सेट गलत सेलेक्ट किया, ये वाले सेट में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, क्या मुझे इस पे और प्रैक्टिस की जरूरत है, क्या मेरे को ये वाले सेट में मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूं या इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है. तो ये एनालिसिस के बेसिस पे आप अगला टेस्ट देने जाएंगे, तभी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा. तो आप जून से लेकर के अगस्त तक मिनिमम एक मॉक आपको वीकली लेना है, लेकिन अगस्त के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाएंगे. अगस्त के बाद जैसे ही आप लास्ट के 3 महीने की प्रिपरेशन की बात करेंगे तो उसको आपकी प्रैक्टिस को एज देने के लिए हम कुछ मॉक्स और बढ़ाएंगे. तो 25 मॉक तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, बट एडिशनली 15 मॉक्स और आपको मैं सजेस्ट करूंगा. वो क्या मॉक्स हैं कि वो बेसिकली कैट के पेपर्स हैं. आप पिछले 5 साल अगर आप देखें तो 2020 से लेकर 24 तक, इन 5 सालों में हर साल कैट का 3 पेपर, मतलब 3 स्लॉट्स के पेपर आपको अवेलेबल है. उन पेपर्स को आप ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे. आपको 40-40 मिनट के पेपर के स्लॉट में आपको वो करना है, एक्चुअल मॉक के फॉर्मेट में ही आपको करना है. ठीक है, तो आपको अगस्त ऑनवर्ड आपको ये 2 मॉक्स बेसिकली हो गए. एक तो आपका रेगुलर जो मॉक चल रहा है वो, प्लस एक जो पिछले सालों के कैट के पेपर्स हैं. तो इन दोनों को लेकर के आप अपनी प्रैक्टिस को एक फाइनल एज फिनिशिंग दे सकते हैं. तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए. तो इस तरह से आप एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे. सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू. Let's look at the strategy for the quant section of CAT exam, probably the most dreaded out of the 3 sections. Now CAT के लिए जो quant की strategy है, I'll divide it into 2 parts, syllabus and test taking. If you follow this strategy properly, quant can actually become a scoring section for you. Instead of being a very feared section, it can in fact become a scoring section. So let's look at this syllabus part first. तो सिलेबस में देखो अभी चल रहा है मिड मार्च, तो क्वांट का जो सिलेबस है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स. तो अभी मिड मार्च से लेकर फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स योर फोकस शुड बी ऑन अर्थमेटिक. ठीक है, नेक्स्ट फॉर द नेक्स्ट 2.5 मंथ्स, दैट इज मिड में से लेकर जुलाई एंड तक, यू शुड ट्राई टू कंप्लीट द अलजेब्रा पार्ट ऑफ द सिलेबस. और अलजेब्रा में नंबर्स इंक्लूडेड है यहां पर. नेक्स्ट अगस्त वाला जो टाइम पीरियड है आपका, वहां पर यू शुड फोकस ऑन ज्योमेट्री. सो ज्योमेट्री में ट्राइंगल्स, सर्कल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पॉलीगन्स, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब यहां पर इंक्लूड हो गया है. ठीक है, एंड द 4th सेक्शन विच इज द मॉडर्न मैथ्स शुड बी कंप्लीटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर. नाउ मॉडर्न मैथ्स में पीएनसी प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, फंक्शंस एंड ग्राफ्स आ जाएगा, वो जो 11th 12th वाले टॉपिक्स होते हैं वो आपके यहां पर आ जाएंगे. ठीक है, तो एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न,
इन द नेक्स्ट क्या हो गया, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन द नेक्स्ट 6 months ऑलमोस्ट you will be able to complete the whole syllabus. अब सिलेबस में यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. क्या? यू शुड राइट टॉपिक टेस्ट आफ्टर एवरी टॉपिक इज फिनिश्ड. ठीक है, टेस्ट लिखना है आपने को तो अल्टीमेटली तो टेस्ट देने की आदत भी होनी चाहिए. एक टाइम जो पीरियड है, एक जो टाइम का प्रेशर होता है, वो हमें उसकी आदत होनी चाहिए. तो राइट टॉपिक टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग ईच टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर हफ्ते में या हर 10 दिन में एक दिन सेट असाइड ओनली फॉर रिवीजन. क्वांट में ऐसा बहुत होता है कि यू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स. जो आपने महीने भर या 2 महीने पहले जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो आप भूलते जाते हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज आपने जो भी पहले पढ़ा हुआ है. तो वंस इन एवरी वीक और वंस इन एवरी 10 days रिवीजन करो. और जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसके फॉर्मूला शीट्स बनाओ. क्यों? ताकि जब आप रिवीजन करोगे उस समय आपको पूरा टॉपिक फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू लुक एट द फॉर्मूला शीट्स क्विकली, जो फॉर्मुलेज वगैरह होते हैं, कुछ शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं, वो आपके फटाफट रिवाइज हो जाएंगे. ठीक है. एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड, जब भी आप कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हो, टॉपिक के एटलीस्ट 100 to 150 क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना रहता है. In those 100 to 150 questions, try to do as many PYQs as possible. देना कैट है, कैट के ही डायरेक्ट क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो ना, उससे अच्छा प्रैक्टिस क्या हो सकता है. 50-60 बेसिक क्वेश्चंस कर लिया, उसके बाद PYQs करो, दैट शुड बी इंपॉर्टेंट. या फिर जो भी कहीं से भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, स्टडी मटेरियल है, 100-120 क्वेश्चंस वहां से कर लिए, फिर नेक्स्ट 30-40-50 क्वेश्चंस आप PYQs से कर लो. दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट प्रैक्टिस दैट यू कैन गेट. ठीक है. तो ये हो गया सिलेबस वाला पार्ट अपना. अब आते हैं टेस्ट टेकिंग पर. नाउ टेस्ट टेकिंग में होता क्या, जनरली या तो आप सेक्शनल्स लिखोगे या फुल लेंथ टेस्ट लिखोगे. तो सेक्शनल या फुल लेंथ टेस्ट में पूरा सिलेबस आपका आता है. ठीक है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट राइटिंग सेक्शनल्स या मॉक टेस्ट राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग. इनफैक्ट वो एडवाइजेबल भी नहीं है. आप टेस्ट दोगे ही क्या जब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है. सो इट्स बेस्ट इफ यू स्टार्ट टेकिंग टेस्ट समवेयर अराउंड जून एंड जुलाई के आसपास से. तो होगा क्या उसमें कि आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और थोड़ा बहुत आपका अलजेब्रा भी कंप्लीट हो जाएगा जून एंड तक. राइट. So from June end या July beginning से you start writing sectionals and full length test. FLTs मतलब full length test. You start writing. Initially frequency कम रहेगी. Probably 1 महीने में आप 2 full length test लिख लो, जुलाई में काफी है. Sectionals आप थोड़े से ज्यादा लिख सकते हो, 4-5 sectionals लिख सकते हो अराउंड जुलाई. फिर ये सिलसिला आपका जुलाई अगस्त तक चलेगा. ठीक है. फिर अगस्त के बाद फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर से योर फोकस विल शिफ्ट अ लॉट ऑन फुल लेंथ टेस्ट एंड लेस ऑन टॉपिक टेस्ट या फिर सेक्शनल्स. थोड़ा बहुत सेक्शनल्स लिख सकते हो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर टाइम पीरियड में, बट योर मेन फोकस शुड बी ऑन फुल लेंथ टेस्ट. in September you can probably write one FLT per week. एटलीस्ट 4 फुल लेंथ स्टॉक टेस्ट तो आप सितंबर में लिख सकते हो. ठीक है. इसके बाद आएगा अक्टूबर, नवंबर. नाउ इन अक्टूबर में यू शुड ट्राई टू राइट एटलीस्ट 2 मॉक्स पर वीक. और मॉक लिखना ही काफी नहीं है, उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. मॉक लिखा, फिर आपने एनालाइज किया कि व्हाट यू डिड करेक्ट, व्हाट यू डिड रॉन्ग, जो भी गलतियां हुई, जिन भी टॉपिक से गलतियां हुई, यू गो बैक टू योर फॉर्मूला शीट्स, रिवाइज कर लिया उतना पार्ट, देखा कि कहां गलती हुई, सो दैट यू डोंट रिपीट दोज मिस्टेक्स इन द नेक्स्ट मॉक. राइट. तो ये हो जाएगा. तो यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. नाउ व्हेन इट कम्स टू नवंबर, आखिरी के 20-25 दिन बचेंगे आपके. नवंबर में बाय दिस टाइम तकरीबन सितंबर तक आते आते यू शुड हैव रिटन अप्रोक्सीमेटली 25 FLTs फुल लेंथ टेस्ट. ठीक है. अक्टूबर एंड तक आते आते अप्रोक्सीमेटली 25 FLTs आप लिख चुके होने चाहिए. इन द मंथ ऑफ नवंबर आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू राइट कैट प्रीवियस ईयर पेपर्स एज मॉक्स. ये वाले जो पेपर है ना, देखो यहां पर आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ दीज पेपर्स, कैट पेपर्स. कैट 17 से 23 तक के PYQs पहले कहीं से भी प्रैक्टिस कर लो, चलेगा. बट कैट 22 से 24 वाले जो पेपर्स हैं,
इनके क्वेश्चंस कहीं से प्रैक्टिस मत करना, बिकॉज यू शुड बी टेकिंग दीज पेपर्स एज प्रॉपर मॉक्स। भाई बेस्ट मॉक क्या है? एक्चुअल कैट का पेपर, उससे ज्यादा अच्छा मॉक क्या ही हो सकता है, राइट? सो टेक दीज। हर साल 3-3 स्लॉट रहते हैं, तो 22, 23, 24 ये 3 साल के 3-3 स्लॉट्स, एटलीस्ट 9 to 10 आपके पेपर्स ये हो जाएंगे, 9 पेपर्स ये हो जाएंगे। तो इन द मंथ ऑफ नवंबर यू शुड टेक एटलीस्ट 9 मॉक्स ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्लस जो भी आपके मॉक टेस्ट सीरीज आपने ली होगी वहां से भी आप कुछ और ले सकते हो। तो अराउंड 35 मॉक्स यू शुड हैव रिटन इन ऑल, ठीक है? मतलब 35 प्रॉब्ली शायद ज्यादा हो जाए किसी के लिए, इफ यू हैव एनी अदर ऑब्लिगेशंस। तो 30 से 35 मार्क्स के आसपास आप लिख चुके होने चाहिए बाय द टाइम यू गो एंड राइट योर CAT exam, right? So this is the strategy, syllabus and test taking that you should follow for your quant section. If you follow this strategy, I am sure कि वो जो quant का डर है वो तो खत्म हो ही जाएगा. In fact, quant will become a scoring section for you. It's not very difficult to attempt 15 to 18 questions in CAT exam. It's not very difficult if your concepts are very, very clear, right? So that's it for this strategy session. All the best. So now that you have heard it from the expert, the sectional wise strategy, let's also look at the practice that you need to do throughout these 8 months. To begin with, first 2 months definitely आपको अपने foundations पे ध्यान रखना है, foundation को strong करनी है, and आप topic test दे सकते हैं और साथ ही साथ एक sectional test for the first 2 months, that is March and April. Then switching to the remaining 3 months जो कि है May, June and July, again आपको अपनी intermediate level ही रहेगा वो, तो आपको topic test भी देना है, sectional test की frequency जो है आप इंक्रीज कर सकते हैं. Then comes the remaining another 2 months, August and September. Now this is like the final level. So यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करेंगे 1 full length mock test. अभी तक आप सिर्फ टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट पे फोकस कर रहे थे ताकि आपका फाउंडेशन पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाए, बट नाउ इज द टाइम टू गो फॉर अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो आपको प्रॉपर 2 आवर्स में देना रहेगा. फिर आ जाता है फाइनल मंथ, दैट इज अक्टूबर. उसमें आपको वीकली 2 to 3 मॉक टेस्ट जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी रहेगी. एक से सीधा आपको जंप ऑन करना होगा टू 2 to 3 फुल लेंथ मॉक्स एवरी वीक. नाउ सिर्फ मॉक्स देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर इज कि आप मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं. जो भी मॉक आप दे रहे हैं उसका एनालाइज करना, उसको एनालाइज अच्छे से पूरे स्क्रूटनाइज वे में करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू नो वेयर आर योर वीकनेसेस एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, द 8 month strategy plan. If you have any doubt, if you have any query, you can drop them down in the comments. Thank you.